بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، گزشتہ 2 ہفتوں سے آپ کے سامنے توحید باری تعالیٰ کے سلسلے میں کچھ باتیں پیش کی گئیں. اس ہفتے آپ کے سامنے ملک کا ایک سلگتا ہوا موضوع، ہمارے ملک کے اندر ایک خطرناک مہم کے خلاف کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. وہ خطرناک مہم کیا ہے کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. قرآن ہمیں بتائے گا ہر موقع پر، ہر لمحے پر کہ تمہارے اوپر کیا حالات آنے والے ہیں اور تم کو ان حالات سے کیسے نمٹنا ہے. قرآن صرف تعویذ گنڈوں کی کتاب اور مردے اور فاتحہ خوانی اور قرآن خوانی کی کتاب نہیں ہے. یہ ایک زندہ جاوید حقیقت ہے، ایک گائیڈ بک ہے اور ایک رہنمائی کی کتاب ہے اور پریشانیوں کا حل ہے اور سلگتے مسائل کا حل ہے. قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد تم کو کافر بنا دیا جائے، تمہارے ایمان کو چھین لیا جائے، تمہارے بچوں کو غیر مسلم بنا دیا جائے، تمہاری بیٹیوں کو اچک لیا جائے، تمہاری بیٹیوں کے ساتھ لو کا افیئر کر کے ان کو ایمان سے دور کر دیا جائے اور ان کو مرتد بنا دیا جائے. یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے اور یہ ملک میں ایک مہم چھڑی ہوئی ہے اور ایک تنظیم سرگرم ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی بیٹیوں کو، بہوؤں کو، عورتوں کو اپنے جال میں، اپنے دام محبت میں اور اپنے جو ہے چوچلوں میں اور اپنے فریب میں، اپنے دھوکے میں کس طریقے سے پھنسایا جائے اور یوز اینڈ تھرو کا معاملہ کیا جائے اور ان کو لا کر ایسے چوراہے پر کھڑا کر دیا جائے کہ جہاں پر وہ کسی طرف جا نہ سکے. ان کے سامنے وہ چوراہا تو ہے لیکن وہ بند ہے، سوائے موت کے اور دوسرا کوئی ان کا راستہ نہ ہو، ایسا ان کے ساتھ معاملہ کر دیا جائے. یہ ملک میں سوچا سمجھا منصوبہ پلان تھا اور ہے اور جاری ہے اس کی کوششیں. آئے دن اخبارات میں آپ حضرات پڑھتے ہوں گے، یہ خبریں ہمیں موصول ہو رہی ہیں کہ اب وقت ہے کہ خواب غفلت سے امت مسلمہ بیدار ہو اور اپنے بچوں بچیوں کی فکر کریں، اپنی بیٹیوں کی خاص طور پر فکر کریں کہ ان کو کوئی اچکا اور راہگیر ان کے ایمان کو اچک تو نہیں لے رہا ہے، اچک تو نہیں لے جائے گا، اور ان کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، اگر ہم ہوش کے ناخن نہیں لیں گے، اگر ہم نے اپنے اولاد کے لیے ان کی تربیت کے لیے وقت اگر ہم نے نہیں نکالا اور ان کی دین ایمان کی حفاظت کی ہم نے فکر نہیں کی، تو میرے بھائیوں القیامت کے دن جس طریقے سے اللہ رب العزت اس بچی سے پوچھیں گے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس نو مولود ابھی بچی پیدا ہوئی کہ اس کو زمانے جاہلیت کے اندر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ ہی دفن کر دیا جاتا تھا.
कुरान ने उसके बारे में, उस मंजर के बारे में इरशाद फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि पूछा जाएगा उस बच्ची से, किस जुर्म की वजह से तुझे जिंदा दरगोर कर दिया गया था। तो जिस तरीके से उस बच्ची से पूछा जाएगा, क्या उन नौजवान लड़कियों से नहीं पूछा जाएगा और उन नौजवान लड़कियों के माँ बाप से नहीं पूछा जाएगा कि किस वजह से तुमने अपनी बच्चियों को कुफ्र के नरगे में ढकेल दिया और किस वजह से तुमने अपनी बच्चियों को जहन्नम का ईंधन बनना पसंद किया। क्यों ये बच्चियां जहन्नम का ईंधन बन रही हैं? हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। हम फिक्र करें, हम दुनिया कमाने के लिए नहीं आए हैं मेरे भाइयों, हम दीन कमाने के लिए आए हैं, अपनी ईमान की हिफाजत के लिए आए हैं। मन काना युरीदु हर्सल आखिरती नज़िद लहू फी हर्सी, जो आखिरत की खेती करेगा, आखिरत की फिक्र करेगा, उसकी खेती में हम इजाफा करेंगे। और मन काना युरीदु हर्सद दुनिया नुती मिन्हा, जो दुनिया के चक्कर में और दुनिया कमाने की फिक्र में अपने आप को घुलाएगा, पिघलाएगा, उसको हम दुनिया दे देंगे। वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, आखिरत में उनके लिए जर्रा बराबर भी कोई हिस्सा नहीं होगा। तू बराए बंदगी है याद रख, बहरे सर अफगंदगी है याद रख, चंद रोजा जिंदगी है याद रख, वरना फिर शर्मिंदगी है याद रख। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। मेरे भाइयों, हम अपने ईमान के साथ साथ अपने बच्चे बच्चियों की फिक्र करें, उनकी पढ़ाई की हम फिक्र करें, उनके सहेलियों, उनके दोस्तों की हम फिक्र करें। खतरनाक साजिशें चल रही हैं मुल्क के अंदर। सिर्फ बुर्का पहना देना, सिर्फ बुर्के का इंतजाम कर देना और किसी स्कूल कॉलेज में उनका दाखिला करवा देना और उनकी फीस का इंतजाम कर देना और उनकी फीस के लिए हम दिन और रात मेहनत करें, इससे आप बरियुज जिम्मा नहीं होंगे। वो कहां जा रही हैं, क्या कर रही हैं, उनकी दोस्तियां किनके साथ है, स्कूल कॉलेज का माहौल क्या है, स्कूल कॉलेज के सिलेबस क्या है, उनके पढ़ाने वाले कैसे हैं और उनकी जो सहेलियां हैं वो कैसी हैं, इनकी नोटबुक के अंदर क्या चल रहा है, इनके बैग के अंदर क्या क्या सामान है, इसको कौन देखेगा। बुर्का तो पहन रही हैं, लेकिन बुर्का भी ऐसा कि जिसको बुर्के की जरूरत है। पर्दा ऐसा हमारे मुआशरे का होते जा रहा है कि उस पर्दे को पर्दे की जरूरत है। और ला कौन रहा है, अब्बा जी ला रहे हैं, ला कौन रहा है, अम्मा जी ला रही हैं। लाइए, पहनाइए और फिर जो हो रहा है उस पर रोइए। अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, गुरु नानक का मशहूर मकूला है। हम इंतजाम कर रहे हैं, हम अपनी बच्चियों को तबाही के दहाने पर खड़ा कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को सेल फोन नहीं हेल फोन दे रहे हैं, जहन्नमी फोन दे रहे हैं कि लो बेटा अपनी जहन्नम तैयार करो। अपनी बच्चियों को एंड्रॉयड मोबाइल देने की क्या जरूरत है, जब तक उनकी शादी न हो जाए कुछ काम नहीं है उनको एंड्रॉयड और इंटरनेट। हां, अगर वो पढ़ाई कर रही हैं उस लेवल की तो इस्तेमाल करवाइए, लेकिन निगरानी के साथ। और फिर एंड्रॉयड मोबाइल की क्या जरूरत, कंप्यूटर रखिए, उस पर अगर काम की जरूरत है उस पर करें। और वो भी कंप्यूटर जो रूम हो वो बीच में हो, ऐसी जगह पर कंप्यूटर रूम हो जहां सबकी आमद और रफ्त हो, ऊपर अकेले बालकनी में नहीं, वरना सन्नाटा हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। शेख अपनी फिक्र कीजिए कि ऐलान बरहमन है, बुतों को सजदा नहीं करोगे, बुत का दिल से निकाल देंगे। मुल्क के हालात बस से बदतरीन होते जा रहे हैं और हम लोग हैं कि हमें कोई टेंशन ही नहीं। हमारे बच्चों का जो माहौल है उसकी कोई हमें फिक्र ही नहीं, हमारा जो माहौल है उससे हम उठने के लिए तैयार नहीं। वही बेढंगी, वही 10 बजे सुबह में उठना, वही 11 बजे दुकान को खोलना, वही रात में 12 बजे दुकान को बंद करना, क्या है ये? इसलिए पैदा किया गया है हमको। मेरे दोस्तों, होश के नाखून लें। सिर्फ जो है ये ना समझें कि केरला के अंदर तबाही मची हुई है, हर जगह तबाही आ सकती है। वो तबाही कौन लाया? अल्लाह रब्बुल इज्जत लाए।
وہ यहां पर लाने के लिए कादिर नहीं है। एक कन्हान नदी बढ़ सकती है, ये भर सकती है और बढ़कर और बहकर ये सैलाब की शक्ल इख्तियार कर सकती है। वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, अल्लाह के लश्कर की तुम्हें जर्रा बराबर खबर नहीं है कि अल्लाह के लश्कर क्या क्या है। वो जो चिड़िया उड़ती है उसको कौन समझ सकता है कि ये हमें नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन क्या हमने सूरह फील भूल गए? अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील। छोटे परिंदे को भेजकर तहस से नहस कर दिया उस जात ने। उसके लश्कर क्या हैं? ये जमीन भी उसका लश्कर है, ये पंखा, ये लाइट, हर चीज उसका लश्कर है, ये आसमान उसका लश्कर है। तकादु समावात यतफत्तरन मिन फौक़िहिन्न, आसमान करीब है कि फट पड़े। मेरे भाइयों, होश के नाखून लें। दीनदारी के जो चोले हम समझ रहे हैं कि ये दीनदारी है, वो दीनदारी नहीं है, वो धोखा है। हम धोखा दे रहे हैं लोगों को। दीनदारी अगर हमारे घर में नाफिज नहीं हो पा रही है तो कौन सी दीनदारी है? हम सारे जहां की फिक्र लेकर घूम रहे हैं, सारे जहां की फिक्र कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे हैं। मेरे दोस्तों, इन बातों से काम नहीं चलेगा। बड़ा होता नहीं कोई बड़ी बातों के करने से, बड़ा होता है वो जिसका बड़ा किरदार होता है। किरदार के अंदर बुलंदी पैदा कीजिए। गुफ्तार की बुलंदी तो मौजूदा हुकूमत से बढ़कर कोई नहीं हो सकता है। गुफ्तार, बातों की बुलंदी, हम देख रहे हैं बातों की बुलंदी किस कदर है। किरदार की बुलंदी पैदा करने की जरूरत है। और अपनी बच्चियों पर आप सोने का लुकमा खिलाइए, अच्छे से अच्छा पहनाइए, अच्छे से अच्छा खिलाइए, लेकिन शेर की निगाह रखिए और इस्लामी लिबास पहनाइए। लिबास क्यों उतारा गया है? लियुवारी सौआतिकुम मरीशा, ताकि तुम अपनी शर्मगाहों को छुपाओ, और जीनत के लिए भी है, लेकिन शर्मगाहों की छुपाने की कोई जरूरत नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ जीनत, इसको हमने तरक्की समझ रखा है। मेरे भाइयों, हम होश में आए दिन ये खबर आ रही है कि गैर लोग हमारी बेटियों को ले जा रहे हैं। ये क्यों ले जा रहे हैं? उसके सबसे बड़े अड्डे को एजुकेशन है, सबसे बड़े अड्डे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, जहां पर लड़कियां आजाद हैं, लड़कों के साथ हैं, तो फिर प्यार मोहब्बत तो होगी ही। दिल बहर मोहब्बत है, मोहब्बत ही करेगा। तू लाख बचा इसे किसी पर तो मरेगा। ये दिल जो है ये मोहब्बत करने के लिए पैदा किया गया है। और जिनके पास ईमान नहीं है उनको क्या फिक्र है कि वो किससे दिल लगाएं, किससे दिल ना लगाएं, दिल के क्या हुकूक हैं और दिल कहां लगाना चाहिए, उनको इन सब बातों से क्या सरोकार। उनका तो मामला ये है, जिधर देखा भली सूरत दिल ने कहा ये भी चाहिए। उनका ये मामला है। और उनके मामले के साथ साथ उनकी ये प्लानिंग है, उनकी ये साजिश है कि किसी तरीके से मुसलमान लड़कियों को अपने दाम में फंसाओ। उनको उन पर इनामात मिल रहे हैं, उनको उस पर शाबाशी दी जा रही है, उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है, और हम अपनी बच्चियों को जो है आजाद रख रहे हैं कि जाओ, सिर्फ बुर्का पहन लेने से दीनदारी नहीं आ जाती। उनके दिल पर मेहनत कीजिए, उनके मिजाज को दीनदार बनाइए। अगर मिजाज और दिल उनका दीनदार नहीं है तो जाहिरी लिबास से कुछ नहीं होगा। और मेरे दोस्तों, हदीस शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वालिद का कोई तोहफा अपनी औलाद के लिए इससे बढ़कर नहीं है कि वो अपनी औलाद को बेहतरीन तरबियत करे और बेहतरीन अदब दे। इससे बढ़कर कोई तोहफा नहीं। जानवरों से बढ़कर हम लोग नहीं हो सकते बच्चे के पैदा करने के सिलसिले में और बच्चों के पालने के सिलसिले में। जिस तरह जानवर अपने बच्चों की परवरिश करते हैं और उनको पैदा करते हैं, उसमें हम लोग बढ़ नहीं सकते हैं, वो हमसे आगे हैं। लेकिन तरबियत में जानवरों के यहां कोई तरबियत नहीं है, लेकिन तरबियत में इंसान को आगे बढ़ना होगा। अगर सिर्फ यही समझ रहे हैं हम कि पैदा करो और बड़ा करो, यही है, तो हम जानवर से बदतर हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी बच्चों की तरबियत करें, और तरबियत ऐसे नहीं हो जाएगी।
तरबियत के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको वक्त देना पड़ेगा, आपको लेकर बैठना पड़ेगा, आपको उनकी जहन साजी करनी पड़ेगी, उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुकूक को बतलाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, सहाबा किराम की जिंदगियों को उनके सामने पढ़कर सुनाना पड़ेगा, सहाबियात की जिंदगियों को उनके सामने बताना पड़ेगा, तब उनका दिल बनेगा, तब उनका मिजाज ईमानी होगा, तब उनके अंदर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा एक जोश होगा, तब उनके अंदर हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा एक खौफ होगा, तब उनके अंदर हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की गैरत जन्म लेगी कि जो टुकड़े टुकड़े हो गई लेकिन ईमान का सौदा उन्होंने नहीं किया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के पसीने से पत्थर आग बुझ जाती थी, चर्बी पिघलने की वजह से आग बुझ जाती थी और गर्म पत्थर ठंडे पड़ जाते थे, लेकिन ईमान का उन्होंने सौदा नहीं किया। कट जाएंगे पर ईमान का सौदा न करेंगे। ये जज्बा कैसे पैदा होगा? ये सिर्फ पैदा कर देने से, सिर्फ उनकी परवरिश कर देने से, सिर्फ स्कूल में डाल देने से, सिर्फ कॉलेज में डाल देने से, सिर्फ डिग्रियां हासिल करवा देने से ये जज्बा हरगिज हरगिज उनके अंदर पनपेगा भी नहीं। पैदा तो दूर की बात, पनपेगा भी नहीं, और पैदा भी कह सकते हैं, जर्रा बराबर उसका ज़ुहूर भी नहीं होगा। मां की गोद सबसे पहला मदरसा है और बाप उसका उस्ताद है। अगर ये लोग फिक्र नहीं करेंगे तो औलाद तो यूं ही वो जो खुदरव पौधे होते हैं उसी के तरीके से होगी। ये बच्चा जो बड़ा होगा, बच्चा 3 किस्म के माहौल को लेता है, उसके अंदर असर आता है। नंबर 1 मां बाप का, नंबर 2 मोहल्ले का, नंबर 3 स्कूल और कॉलेज का। अब मां बाप के यहां अगर उसको दीनी तरबियत, ईमानी गैरत की तालीम नहीं दी जा रही है तो मोहल्ले में कौन लेकर बैठा है उसको समझाने के लिए? मोहल्ले में तो पतंगबाजी होती है और जुए होते हैं और लकोठी खेली जाती है, ये सब चीजें, गालियां होती हैं और पतंग को पकड़ने की मश्क होती है मोहल्ले में। और स्कूलों में तो वंदे मातरम होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं और बेहयाई के अड्डे हैं, को एजुकेशन है और टुगेदर है और पता नहीं क्या क्या है। स्कूल थोड़ी जिम्मेदार हैं आपके बच्चों की तरबियत के, आप जिम्मेदार, आप उनके बच्चे, आपके बच्चे हैं, स्कूल वालों के बच्चे थोड़ी ना है, आपके बच्चे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जिसको किसी कौम पर जिम्मेदारी दी गई, जो किसी का जिम्मेदार बना और उसने उसके साथ भलाई नहीं की, खैरखाही नहीं की, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा वो। और हदीस शरीफ में यह भी है कि इंसान इंतकाल कर जाता है, 3 चीजों को छोड़कर जाता है, सदका जारिया और ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। तो नेक औलाद को छोड़ेगा कब? जबकि तरबियत करेंगे तब नेक औलाद बचेगी ना। अब तरबियत ही अगर दीनदारी के हिसाब से नहीं हुई है तो वो तो फिर आपके माल का बेजा इस्तेमाल होगा और आप क्या, वो आपके लिए दुआ करेंगे? वो खुद ही अपने लिए दुआ नहीं करते तो आपके लिए क्या खाक दुआ करेंगे? उनके पास टाइम नहीं है आपके लिए दुआ करने के लिए। उनके पास व्हाट्सएप से और बारों में घूमने से और रातों में जो है अपने वक्त को जाया करने से और कैरम बोर्ड खेलने से और गेम खेलने से उनके पास आपके लिए दुआ करने का बिल्कुल वक्त नहीं रहेगा। अगर ऐसे ही हमने अपनी औलाद को छोड़ दिया तो। और हदीस शरीफ में है कि जिसके यहां बच्ची पैदा हो और वो खुश हो और वो बच्ची को लड़कों से बढ़कर समझे, ऐसा नहीं कि लड़कों को अहमियत दे और बच्ची को कम फजीलत दे और उसकी तरबियत करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। इस तरीके से हुजूर ने अपनी उंगलियों का इशारा करके फरमाया कि जन्नत में मेरे जैसे 2 उंगलियां साथ में, वैसे वो भी मेरे साथ जन्नत में होगा। और जिसके यहां 3 बच्चियां हुई और उसने उनकी अच्छी तरबियत की और उनकी शादी कर दी, वो कल क़यामत के दिन वो उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। इसी तरीके से हुजूर ने फरमाया कि अगर जो अपनी बच्चियों के सिलसिले में आजमाया जाए, यानी उनका खर्चा बर्दाश्त करे, उनकी शादी करे, तो ये बच्चियां कल क़यामत के दिन जहन्नम में जाने से उसके लिए ढाल बन जाएंगी, उसके लिए ढाल बन जाएंगी। मेरे भाइयों, इतनी बेहतरीन तालीम इस्लाम में दी गई है, उसको छोड़कर हम मगरिबी तहजीब के पुजारी बन गए। क्या हमारे इस्लामी जगहें, इस्लामी इलाके, उसमें भी वही स्कूल, वही
अंग्रेजी तहजीब वाले, वही अंग्रेजी सिलेबस, वही अंग्रेजी कल्चर, तो फिर बच्चों की तरबियत कहां होगी? और मां बाप तो कर रहे हैं माशाल्लाह, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, लेकिन उनको बाहर का माहौल, वो बच्चों को 3 किस्म के माहौल का असर होता है, मां बाप का, मोहल्ले का, स्कूल का। अब वो स्कूल का माहौल हम मुसलमानों ने ऐसा बना रखा है, जो गैर है उनसे तो कोई बहसो मुबाहसा ही नहीं, लेकिन हम लोग जो मुसलमान स्कूलों के और यूनिवर्सिटियों के जो जिम्मेदार हैं, वो तो उनको तो चाहिए कि इस्लामी निजाम कायम करें। उनको तो चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में हैं और कामटी में हैं, जो रिटायर हो गए, उनको चाहिए कि लड़कियों का और लड़कों का अलग से इंतजाम किया जाए, अलग से जो, और इसी तरीके से जिनको हुकूमती पावर है, जिनको हुकूमत की तरफ से जमीनें अलाट की जाती हैं, जो हुकूमत से जमीनों को ले सकते हैं, जो हमारे मुसलमान सियासी रहनुमा हैं, एक बात जहन खोलकर समझ लीजिए कि इस उम्मत की जो रहनुमाई है वो तो उलमा करेंगे ही करेंगे, लेकिन सियासी जो रहनुमा हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। ये दोनों का मिलना, उलमा और सियासी रहनुमा, सियासी कायदीन, ये दोनों मिलेंगे तो उम्मत तरक्की करेगी। इसलिए कि हुकूमती जो वार हैं और हुकूमती जो टेंशन की चीजें हैं, उसको उलमा कहां से हल कर पाएंगे? वो मुसल्ले पर हल नहीं होंगी। उसके लिए हमें कदम उठाना पड़ता है, उसके लिए पावर होना चाहिए। मुसल्ला भी जरूरी है, लेकिन पावर भी जरूरी है। हमारे नबी ने मदीने में रहकर दुआएं नहीं की, मैदान जंग में उतरे हैं, बदर में उतरे हैं, उहद में उतरे हैं, खंदक में उतरे हैं, अपने दांतों को शहीद करवाया है, तदाबीर इख्तियार की हैं, हुकूमत वक्त से मोर्चा लिया है, हुकूमत वक्त से पंगा लिया है। ये कौन लेगा पंगा? उलमा। तो फिर नमाज कौन पढ़ाएगा और बयान कौन देगा? ये जो हमारे मुस्लिम लीडरान हैं, उनसे हमारी ये अपील है कि वो भी उम्मत के बच्चियों और बच्चों की फिक्र करें, उनके मुस्तकबिल की फिक्र करें, उनके लिए ऐसे बेहतरीन कॉलेज बनवाएं, बेहतरीन स्कूल बनवाएं। और उसका निजाम कैसे चलेगा वो उलमा तय करेंगे, कैसा निजाम चलेगा। लेकिन वो जो खाका तैयार होगा और जो स्कूल और कॉलेज तैयार होगा, ये सियासी लीडरान हुकूमत वक्त से जमीन को अलाट कराएं, ये करवाएंगे, इनकी जिम्मेदारी है। अगर इन्हें कुछ भी शरीयत मोहम्मदिया से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जर्रा बराबर भी मोहब्बत है, तो इन्हें यह कदम उठाना पड़ेगा। अगर उनसे कुछ भी अकीदत है तुमको, तो अपना वतीरा बदलना पड़ेगा, अपनी जिंदगी के तरीके को चेंज करना पड़ेगा। अगर कुछ अकीदत है तो मदीने वाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उनसे कुछ भी अकीदत है तुमको, तो अपना वतीरा बदलना पड़ेगा, निफाक जुबान और अमल से गुजरकर सदाकत के सांचे में डालना पड़ेगा। बहुत हो गया धोखा देना, बहुत हो गया बड़ी बड़ी बातें करना, बहुत हो गया लोगों के आंखों में धूल डालना। अब कुछ काम कीजिए और काम करके दिखाइए। इत्तेहाद इत्तेफाक को पैदा कीजिए, इंतशार से बचिए। इंतशार से कभी तरक्की नहीं हो सकती है। वला तनाज़उ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम वस्बिरू। अगर तुम्हारी शान में गुस्ताखी हो रही है, सब्र कर लीजिए, इंतशार मत कीजिए, आपस में लड़ाइयां मत कीजिए, ग्रुप बंदी पार्टी बंदी मत कीजिए, वरना तुम्हारी हवाएं उखड़ जाएंगी, तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। सब्र भी तो कोई चीज है। उम्मत के खातिर, उम्मत के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के नबी के लिए आपस में एक हो जाएं और इस्लाम की तरक्की के लिए, अपने बच्चों और बच्चियों की हिफाजत के लिए और उनके ईमान की हिफाजत के लिए जो कुछ हो सके हम करें, कदम आगे बढ़ाएं। अगर उनसे कुछ भी अकीदत है तुमको, तो अपना वतीरा बदलना पड़ेगा, निफाक जुबान और अमल से गुजरकर सदाकत के सांचे में ढलना पड़ेगा। हम अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करें। मुनाफिकत जो हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में, हमारी बातों में बसी हुई है, उसको निकाल फेंकें, उसको निकाल फेंकें। जहां कुछ काम हो रहा है, अगर हो सके तो उसमें शिरकत करो, अगर नहीं हो सके तो उसके लिए दुआ करो। उसके खिलाफ आवाज मत उठाओ, उसके खिलाफ आवाज मत उठाओ, उसके खिलाफ साजिशें मत करो, उस काम को बंद करने की कोशिश मत करो, वरना फिर तुम में और मुनाफिकीन में और काफिरीन में क्या फर्क रह जाएगा। वो भी अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाह,
जो लोग अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, हम वैसे ना बने। हम काम करें, काम करने वालों की हौसला अफजाई करें, काम करने वालों का या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू अंसार अल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह के मददगार बन जाओ। अल्लाह मोहताज नहीं है, अल्लाह के मददगार बन जाओ, अल्लाह के रसूल के मददगार बन जाओ। मन अंसारी इल्लाह क़ाल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों से जब फितना फसाद बढ़ने का डर हुआ तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम वालों से पूछा मन अंसारी इल्लाह, कि मेरी कौन मदद करेगा अल्लाह के लिए? तो उनके साथियों ने कहा क़ाल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, तो उनके साथियों ने कहा हम अल्लाह की मददगार हैं और हम आपकी मदद करेंगे। मेरे भाइयों, हम सपोर्ट करें, हम इख्तलाफ ना करें। कोई अगर कुछ भी अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है उसको सराहिए, उसमें साथ दीजिए, उसके लिए दुआ कीजिए, और नहीं कुछ कर सकते चुपचाप खामोश रहो, कुछ कमेंट मत कीजिए अगर आपसे कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप कुछ करने की ताकत नहीं रखते हैं तो आप कमेंट रखने की भी ताकत नहीं रखते हैं, आप एतराज करने की भी ताकत नहीं रखते हैं। काम कीजिए, थोड़ा 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 थोड़ा, इंशाअल्लाह कतरा कतरा दरिया शबद हो जाएगा। और ये जो लीडरान है इनसे नफरत मत करो, इनको गालियां मत दो कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, उनको समझाओ, उनके लिए दुआ करो कि अल्लाह उनसे काम ले दीन इस्लाम का। वो जो कर रहे हैं तुम कर नहीं सकते, वो जो महाज को संभाले हुए हैं वो तुम उसको कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ हालात आ जाए क्या कर लेंगे आप? कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। तो फिर क्यों एतराज करके किसी का दिल तोड़ना? मेरे भाइयों, हम अपने घर वालों की, अपने बच्चे और बच्चियों की खास तौर पर इस मामले में फिक्र करें। ऐसे निजाम को कायम करें जो शरीयत के मुताबिक हो, ऐसे स्कूल और कॉलेज बनाएं, ऐसे ट्यूशन क्लासें हम कायम करें जिसमें अगर जो लड़कियां पढ़ी लिखी हैं वो लड़कियों की ट्यूशन जो है क्लास कायम करें, जो नौजवान पढ़े लिखे हैं वो नौजवान लड़कों की ट्यूशन क्लास कायम करें। और इसी तरीके से जिनको अल्लाह ने माल और दौलत दिया है, जिनको हुनर दिया है, जिनको उम्मत की फिक्र दिया है और जिनके अंदर इखलास का जज्बा है, वो ऐसे स्कूल और कॉलेज कायम करें जो शरीयत के मुताबिक हों। वरना मेरे दोस्तों, ये को एजुकेशन हमारे ईमान को तबाह कर देगा। हमारी बच्चियां अगर वहां गई पढ़ने के लिए, वो प्यार मोहब्बत के चक्कर में अपने ईमान का सौदा कर बैठेंगी। हम नहीं बचा पाएंगे और नहीं बचा पा रहे हैं लोग, नहीं बचा पा रहे हैं लोग। लड़कियां हाथ से निकल जा रही हैं। और तरबियत करें, अच्छे से उनका लिबास हो शरीयत इस्लामी के मुताबिक, उनको गाड़ियां न दी जाएं। ये छोटी छोटी बच्चियां अगर गाड़ियां चलाएंगी, इनको हम गाड़ियां देंगे तो ये तबाही के दहाने पर पहुंच जाएंगे। इनको एंड्रॉयड मोबाइल ना दें। अगर देना है अपने सामने दो, अपना मोबाइल दो, लो बेटा इस्तेमाल करो, देखो क्या इस्तेमाल करते हो, नाच सुनो, बयान सुनो। उनको अगर हमने एंड्रॉयड मोबाइल गिफ्ट किया, हदिया दिया और जो है उनका दिल खुश किया, तो हमने उनकी जहन्नम तैयार करने के हम मददगार होंगे। मेरे दोस्तों, हम इस्लामी लिबास खरीद कर उनको पहनाएं जिसमें ढका छुपा हुआ मामला हो, जिसमें बेपर्दगी ना हो। वो जब बाहर निकलें तो अच्छा बुर्का पहनकर निकलें, जो बुर्का है वाकई वो बुर्का पहने, हम खरीदें वो बुर्के। और मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, ना मिले तो सिलवाएं हम। वरना इस तरीके से बाजार गर्म है कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। और किससे बाजार गर्म है? हमारी माओं और बहनों से, हमारे घर की मस्तूरात से। और हम सब तैयार कर रहे हैं। जब हम उन्हें चमकाएंगे और उनको फुहाशी और ओरियानियत वाला लिबास पहनाएंगे तो कहां उनकी इज्जतें महफूज रहेंगी? कहां जो उनको देखेगा वो सोचेगा कि मैं इनको हासिल करूं और उसके लिए वो कोशिश करेगा? कहां बच पाएंगे? और फिर एंड्रॉयड मोबाइल, फिर बाइक, फिर मोपेड, फिर स्कूटी, फिर ये सब चीजें। मेरे भाइयों, हम में से हर कोई फिक्र करे अपनी भी, अपने घर वालों की। ये बात कई मर्तबा आ चुकी है, लेकिन इस बात की कई मर्तबा कुरान हदीस में तालीम दी गई, बार बार इसको दोहराया गया। अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम के ईंधन से बचाओ। ऐसा ना हो कि वो जहन्नम का ईंधन बन जाए और तुम जिम्मेदार हो, तुमको तुम्हारे माताओं के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने उनकी कैसी परवरिश की।
बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो, 10 साल का हो जाए नमाज छोड़ा है उसकी हल्की फुल्की पिटाई करो। ये सब तालीम दी गई है तरबियत की। मेरे दोस्तों, हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की फिक्र करें, उसके उसूल जानें, और औरतों के अंदर भी प्रोग्राम करवाइए। मर्द हजरात तो यहां सुन रहे हैं, औरतों में क्या हो रहा है, कौन उनकी रहनुमाई कर रहा है? उनकी रहनुमाई कॉलेज कर रहे हैं, उनकी रहनुमाई सर लोग कर रहे हैं, उलमा रहनुमाई करने के लिए हैं। ये सियासी कायदीन भी रहनुमाई करने के लिए नहीं है, वो बेदीन प्रोफेसर भी रहनुमाई करने के लिए नहीं है। वो बेदीन जो खुद इस्लाम के लिबास में पोशाक में ना हो, वो क्या हमारे बच्चों की रहनुमाई करेगा? और ऐसी जगह भी नहीं रहनुमाई कर सकती। उलमा से रहनुमाई करवाइए। उलमा इसीलिए आए हैं दुनिया में, और इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसीलिए पैदा किया है कि तुम अंबिया इकराम के बाद उलमा ही, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, के उलमा अंबिया इकराम के वारिसीन हैं। जो काम नबियों का था वही काम उलमा करेंगे। उनके अलावा अगर कोई काम करेगा और वो रहनुमाई की कोशिश करेगा, ज़ल्लू फ़अज़ल्लू, वो खुद भी गुमराह हुआ है, दूसरे को भी गुमराह करेगा। जो डॉक्टर नहीं है वो कभी इलाज नहीं कर सकता है, वो हिंदुस्तान आबाद नहीं करेगा, वो कब्रिस्तान आबाद करेगा। हां, जो लोग मेहनत करके, इल्म हासिल करके, अल्लाह वालों की सोहबत उठाकर हमारी बात का गलत मतलब हरगिज न लिया जाए। और एक बात और भी कान खोलकर सुन लीजिए कि हमारे बयानात से आपस में तबसरेबाजी जो की जाती है, किसी शख्सियत को सामने रखकर, किसी आदमी को सामने रखकर कि तुमको कह दिए, तुमको कह दिए, मैं कयामत के दिन ऐसे आदमी का गर्दन पकड़ूंगा। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, इस मेहराब पर और इस मिंबर पर, ये मिंबर रसूल है, इस पर हम किसी पर तानु तशरीह नहीं करते। जो हक है वो बोला जाएगा, और जो हक है उसको छुपाया नहीं जाएगा। बराहे करम कोई भी अगर आपके सामने कहे कि मौलाना ने तुम्हारे बारे में बोला, मुफ्ती साहब ने तुम्हारे बारे में बोला, तो तुम कह देना तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठे हो, तुम फितना फैलाते हो, तुम कज़्ज़ाब हो। बराहे करम इस तरह का माहौल हरगिज न बनाए। मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा था कि जो लोग इल्म हासिल बाकायदा नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने उलमा की सोहबत उठाई और उनके अंदर दीन की सूझबूझ है, उलमा का उन पर एतमाद है, अगर वो लोग हमारी रहनुमाई करें, हमारे बच्चों की रहनुमाई करें, हमारे अंदर दीनी बात को कहें, तो हम उनकी बात को सुनेंगे, इसलिए कि वो मुअतमद हैं, वो मुअतबर हैं। और ऐसे ही कोई आ जाए, चलो हम कहते हैं तुम सुनो, वो खुद भी गुमराह हुआ है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, उसका ये मामला होगा। मेरे भाइयों, बात बहुत है, बस एक बात है, अपनी और अपने घर वालों की और अपनी उम्मत की फिक्र कीजिए, और इर्तिदाद से ईमान की फिक्र कीजिए कि कहीं ये काफिर ना हो जाएं, कहीं हम काफिर ना हो जाएं, कहीं हम मुनाफिक ना हो जाएं, कहीं हमारा ईमान हमसे छीन न लिया जाए। अल्लाह ताला हमें अब हमारे ईमान की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।